Hello students, today's video is going to be very useful from your coming board exam. In this video, we will talk about the concept of pro rata allotment when the shares are being issued by a company. Now, when does the situation arises when the company goes for pro rata allotment of shares? See, such a situation arises when the number of shares subscribed by a company are more than the number of shares offered by the company. So when the shares which a company is issuing are less and the people at large are subscribing for more number of shares than what actually the company is offering, then that is the case of oversubscription. So here I have written when issued shares are less and the subscribed number of shares are more. इसी चीज को समझने के लिए I've taken a very easy example, you can say, or an example from your real life. Just imagine that you are going to buy a bread from market और इस ब्रेड का प्राइस है 15 रुपये 15 रुपीज. आपने शॉपकीपर को 20 रुपीज दिए. You can see what he is offering. He is offering something valuing rupees 15, and what you as customer are paying 20 rupees. Now, what are the various alternatives available with the shopkeeper? First alternative is that he will reject the extra amount. That means he will refund the extra amount. वो 5 rupees आपको जो है वो refund कर देगा. Another alternative, okay, you are a regular customer, instead of refunding the amount, it is saying better you adjust this amount on next purchase. ये जो next purchase पर हम adjustment कर रहे हैं, this is pro rata allotment. यानी शेयर्स के केस में भी हम सभी पैसा जो फेस वैल्यू ऑफ शेयर्स है वो एक साथ नहीं मंगवा रहे हैं. हम पहले एप्लीकेशन मनी मंगवा रहे हैं, देन अलॉटमेंट, देन फर्स्ट कॉल एंड देन फाइनल. जब आपने शेयर्स के लिए एप्लीकेशन मनी दिया, आपने एज अ शेयर होल्डर एक्स्ट्रा पैसे दिए, कंपनी सेड कि व्हाई शुड आई रिटर्न दैट एक्सेस मनी, आई विल एडजस्ट दिस अमाउंट व्हेन अलॉटमेंट मनी विल बी ड्यू फ्रॉम यू. So whenever the situation arises, I will adjust this extra amount of application on allotment. Last case क्या है? दुकानदार के पास 2 रुपए खुले थे, चेंज था, और 3 रुपए उसने बोला कि better you get adjusted on the next purchase. Same thing happens with the company. There are so many shareholders who are applying. Maybe to few shareholders, it is sending the letter of rejection, and to few, it is issuing shares on pro rata basis, pro rata allotment. Now, let us take one situation other than the real life example that we have just discussed. XYZ is a company which has issued 50,000 equity shares. So these are the offered shares. Now, the public subscribed for 60,000 shares. Public ने ज़्यादा shares के लिए apply किए. So this is clearly a case of oversubscription. Now, how can the company allot shares? Rejection of excess application. So ये जो 10,000 shares के लिए extra application आया, this all money will be refunded. Application money ही आया, तो इन 10,000 shares पे application money ही refund होगी. Second alternative है, हम 10,000 जो amount हमारे पास shares के ऊपर extra आया application का, we are not going to refund it. We will adjust that amount on our next installment, which is allotment. And last case is, as I said, maybe there is a combination of shareholders. There are people who have applied for a very small number of shares. So to them, we can send letter of rejection. And those who applied for a good number of shares, to them, we can allot shares either in full, or to few, we can just allot the shares on proportionate basis. So giving them the shares on proportionate basis is pro rata allotment. Now starting with our first situation, जहां पर हम एक्सेस एप्लीकेशन मनी को रिफंड ही करेंगे. मैंने केस लिया एबीसी लिमिटेड, एक कंपनी है जिसके पास 50,000 इक्विटी शेयर्स है ऑफर करने के लिए. पब्लिक ने भले ही 60,000 शेयर्स के लिए अप्लाई किए. एप्लीकेशन मनी 2 रुपीज है, अलॉटमेंट 3, फर्स्ट कॉल 5. हमने इस फेस वैल्यू को ब्रेकअप किया. Now the company refunded the excess money received on application due over subscription. तो जो हमारा ओवर सब्सक्रिप्शन का अमाउंट आया है
वो हम उसे रिफंड कर रहे हैं। सी पहली एंट्री बहुत आसान है, 1 मार्कर अगर एक क्वेश्चन आ जाता है और आपसे कहता है बताइए कितना अमाउंट कंपनी ने रिसीव किया एप्लीकेशन का, तो रिसीव अमाउंट इज 1 विच इज बीइंग डेबिटेड इन बैंक अकाउंट। आप देख सकते हैं 60,000 शेयर्स पर कंपनी ने 2 रुपीज, व्हेन यू आर अप्लाइंग ऑब्वियसली यू विल पे एप्लीकेशन मनी, हैज रिसीव्ड 1,20,000। नेक्स्ट केस में इस 1,20,000 अमाउंट को ही अब हम एडजस्ट करेंगे, बिकॉज वी कैन ओनली अलॉट 50,000 शेयर्स। हम यहाँ क्वेश्चन में देख पा रहे हैं कि हमारे पास अवेलेबल शेयर 50 हैं, बट एप्लीकेशन आ रही है 60 के लिए, तो हमारे पास कितने शेयर्स का अमाउंट एक्स्ट्रा है? 10,000 शेयर्स का। और कितना अमाउंट एक्स्ट्रा है? अभी तो सिर्फ शेयर होल्डर्स ने अप्लाई ही किया है, तो जो एक्स्ट्रा अमाउंट उन्होंने पे किया है दैट इज एप्लीकेशन मनी। तो 20,000 rupees extra आए। Now what to do with this 20,000? Question is very clearly saying that the company has decided to refund. So what goes out is credited. तो मैंने यहाँ पर बैंक अकाउंट को क्रेडिट कर दिया। कंपनी ने भले ही 60,000 शेयर्स के लिए एप्लीकेशन आई है, बट अलॉट 50,000 शेयर्स ही किए हैं शेयर होल्डर्स को। I hope this entry is clear. Here we can see that the excess money on application received has been refunded. Now we'll make due the next installment, which is allotment, equity share allotment account debit to equity share capital account. 50,000 shares ही कंपनी ने इशू किए थे, अलॉट किए हैं, जिन पे अलॉटमेंट के 3 रुपीज बनते हैं, दैट इज 1,50,000। नाउ द अमाउंट हैज बीन रिसीव्ड, कुछ नहीं लिखा यहाँ पर, हमारे पास डिफॉल्ट है। नेक्स्ट हमने फर्स्ट कॉल ड्यू किया, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, which was 5 rupees on 50,000 shares, so it is 2,50,000 amount received. So very easy case, first case ओवर सब्सक्रिप्शन का, जब आपने बहुत इजीली जो एक्स्ट्रा अमाउंट आया था उसे रिफंड कर दिया। नाउ सेकेंड सिचुएशन इज पार्शियल और प्रोराटा अलॉटमेंट, कि हम अमाउंट जो आ रहा है एक्स्ट्रा उसको वापस नहीं कर रहे हैं, हम उसको नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट जो कि हमारी अलॉटमेंट है उस पर एडजस्ट करेंगे। अगेन क्वेश्चन इज you received amount on application is 1,20,000, 60,000 into 2। अब आपने जब शेयर्स अलॉट किए इन शेयर होल्डर्स को 50,000, तो जो 10,000 शेयर्स पे आपको एप्लीकेशन के 2 रुपीज एक्स्ट्रा आए थे, नाउ इंस्टेड ऑफ रिफंडिंग इट थ्रू बैंक यू आर ट्रांसफरिंग इट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट। दिस इज प्रो राटा अलॉटमेंट। सी हाउ इजी इट इज। ब्रेड का एग्जाम्पल ही देखो, आपने जो ब्रेड खरीदी ये आपकी नेक्स्ट परचेज पर जो आपके 5 रुपए एडजस्ट हो रहे हैं ना वो। तो नेक्स्ट हमारे पास यहाँ क्या एप्लीकेशन के बाद अलॉटमेंट, तो हमने ये अमाउंट कहाँ एडजस्ट कर दिया बेटा? अलॉटमेंट। नाउ मूविंग अहेड, हमारे पास नेक्स्ट जो अमाउंट ड्यू हो रहा है अलॉटमेंट का 50,000 शेयर्स पे 3 रुपीज के हिसाब से, दैट इज 1,50,000। नाउ बीइंग a person of commerce background, will you pay extra amount? कॉमर्स बैकग्राउंड के नहीं भी हैं, पैसे का हिसाब तो सबको आता है, चाहे आप पढ़े लिखे हैं या नहीं है। एवरीबडी count money very effectively and efficiently because it is your money। आप टाइम से पहले किसी को ज्यादा भी नहीं देंगे और आप ये भी नहीं चाहेंगे कि आपका नुकसान हो जाए, तो यू आर बोथ इफेक्टिव एंड एफिशिएंट विद मैनेजिंग योर कैश। सो यहाँ पर 1,50,000 अमाउंट ड्यू हुआ। अब आपको याद आया ऑलरेडी मैं तो 20,000 रुपीज दे चुका हूँ, सो हाउ मच मोर यू विल पे, हाउ मच कंपनी विल रिसीव? इट विल रिसीव द बैलेंस अमाउंट विच इज 1,30,000। अब देखो ये अमाउंट अलॉटमेंट तक ही एडजस्ट हुआ। फर्स्ट कॉल पे अगेन हमने पूरा अमाउंट ड्यू किया, हमारी फर्स्ट कॉल थी 5 रुपीज की, नंबर ऑफ शेयर्स हैं 50, हमने 2,50,000 रुपीज का अमाउंट ड्यू भी किया और रिसीव भी किया। नाउ द सिचुएशंस, ट्रीटमेंट ऑफ सरप्लस एप्लीकेशन मनी ऑन प्रो राटा अलॉटमेंट। अलॉटमेंट एडजस्ट होने के बाद भी अगर एक्स्ट्रा अमाउंट बच जाए तो उसका क्या करना है? पहला केस है when the question is silent or states that excess application money is received
is to be adjusted against allotment. सिर्फ ये लिखा कि allotment पे adjust करना. Then surplus application money is adjusted against allotment and amount in excess of allotment money is refunded. अगर इसके बाद भी कुछ बच जाता है तो आपको रिफंड करना है. ये नहीं कि आगे आप फर्दर कॉल पर ले जाएं. आप फर्दर कॉल पर कब लेके जाएंगे? When the question prescribe that surplus money is to be refunded after adjustment of both allotment and call. Then the amount is transferred to share allotment and calls in advance account. The balance अगर उसके बाद भी बच जाता है तो वो रिफंड करेंगे. अब आप उसको फर्दर नहीं लेके जाएंगे. तो ये आपको अपने एग्जाम में ध्यान रखना है. I have covered both the cases in my coming slides. Let us now start with our first case, which is rejection plus pro rata allotment. यहाँ पर एबीसी लिमिटेड कंपनी ने 50,000 शेयर्स ऑफर किए हैं, फेस वैल्यू 10 ईच. पब्लिक ने सब्सक्राइब किया 60,000 शेयर्स के लिए. फेस वैल्यू का ब्रेकअप गिवन है एप्लीकेशन 6, अलॉटमेंट 1, फर्स्ट कॉल ₹3. कंपनी हैज एडजस्टेड द एक्सेस मनी रिसीव्ड ऑन एप्लीकेशन ड्यू ओवर सब्सक्रिप्शन ऑन अलॉटमेंट. अलॉटमेंट पर एडजस्ट किया है बट नो फर्दर. अगर उसके बाद भी कोई अमाउंट बच रहा है सो व्हाट वी हैव टू डू? वी हैव टू रिफंड इट. तो सबसे पहली एंट्री, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन. जब अप्लाई कर रहे हैं 60,000 शेयर्स के ऊपर एप्लीकेशन मनी के ₹6 पे कर रहे हैं शेयर होल्डर, तो कंपनी के पास अमाउंट रिसीव डेबिट व्हाट कम्स इन ₹3,60,000 आए थ्रू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन. नाउ वी हैव टू क्लोज दिस अकाउंट. तो अब इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट को डेबिट करेंगे विथ 3,60,000. नाउ व्हेन दिस अमाउंट इज रिसीव्ड, the company is allotting only 50,000 shares. आप यहाँ देख सकते हैं. So 50,000 into 6, हमारा एप्लीकेशन का जो अमाउंट ट्रांसफर हुआ शेयर कैपिटल में दैट इज 3 लाख. नाउ 10,000 शेयर्स पर ₹6 एक्स्ट्रा आए. यू कैन सी 10,000 शेयर्स पर ₹6 एक्स्ट्रा आए. दैट मीन्स द एक्स्ट्रा अमाउंट रिसीव्ड इज 60,000. जबकि अगर हम अपने 50,000 शेयर्स के ऊपर ₹1 का अलॉटमेंट देखते हैं तो हमारा जो अलॉटमेंट का अमाउंट बनता है इट बिकम्स ओनली 50,000. तो यानी रिमेनिंग ₹10,000 अलॉटमेंट एडजस्ट होने के बाद एक्स्ट्रा अमाउंट है. एंड द क्वेश्चन इज सेइंग वी हैव टू एडजस्ट द एक्सेस अमाउंट रिसीव्ड ऑन एप्लीकेशन ओनली टिल अलॉटमेंट. अब इस केस में क्या करना पड़ेगा? जो रिमेनिंग हमारे पास ₹10,000 बच जाएंगे वो हमें रिफंड करने पड़ेंगे. तो ऐसा क्वेश्चन आपके पेपर में 1 मार्कर में बहुत इजीली आ सकता है और ये बिल्कुल भी डिफिकल्ट नहीं है. सो आफ्टर डूइंग दिस एंट्री, द नेक्स्ट एंट्री विल बी टू मेक द अमाउंट ड्यू ऑन अलॉटमेंट व्हिच इज 50,000 into 1, 50,000, 50,000. And when we will be about to receive the amount on allotment, we will receive nil amount because already हमें पूरा अमाउंट जो है वो एप्लीकेशन के साथ ही आ चुका है. Then after that we will make due the first and final call. 50,000 शेयर है, ₹3 हमारे पास यहाँ दिख रहा है. अलॉटमेंट फर्स्ट और फाइनल कॉल के ड्यू है, that is 1,50,000 and this amount is received. I hope this case is clear. Moving to our last case, situation 4. अगेन रिजेक्शन और प्रो राटा अलॉटमेंट है. एबीसी लिमिटेड ने अब भी 50,000 शेयर इशू किए हैं, ₹10 फेस वैल्यू. 60,000 के लिए सब्सक्रिप्शन आया है. ब्रेकअप 6, 1 और 3 का गिवन है हमारे पास. एप्लीकेशन अलॉटमेंट फर्स्ट एंड फाइनल कॉल. नाउ द क्वेश्चन इज सेइंग द कंपनी एडजस्टेड द एक्सेस मनी रिसीव्ड ऑन एप्लीकेशन ड्यू ओवर सब्सक्रिप्शन ऑन अलॉटमेंट एंड फर्स्ट एंड फाइनल कॉल. दोनों लिखा हुआ है. तो यानी अब हम अमाउंट फर्स्ट और फाइनल कॉल तक लेकर जाएंगे. 60,000 शेयर्स पर एप्लीकेशन के ₹6 के हिसाब से 3,60,000 आए हैं. 50,000 पे 6 के हिसाब से शेयर कैपिटल में ट्रांसफर होंगे 3 लाख. शेयर अलॉटमेंट में 50,000 का ही अमाउंट बनता है. 50,000 into 1 नेक्स्ट जो हमारा अमाउंट है. उसके बाद भी ₹10,000 जो बच रहे हैं 10,000 शेयर्स पे. देखो ₹6 आए हैं एप्लीकेशन के, 5 हमने एडजस्ट कर दिया अलॉटमेंट पे, रिमेनिंग ₹1 एडजस्ट करेंगे कॉल्स पर.
और उसके लिए हम अकाउंट जो ओपन करेंगे दैट विल बी कॉल्स इन एडवांस अकाउंट. Again, we will make our equity share allotment amount due, and then we will receive nil amount क्योंकि already हमारे पास पूरे 50,000 आ चुके हैं. Now, when we will move for our first call, which is for 1,50,000, and when we will receive amount, already हमें calls in advance का amount application के time में 10,000 मिल गया था, तो remaining हमारे पास 1,40,000 rupees का balance जो है वो फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पर रिसीव होगा. I hope now the concept of pro rata allotment, only pro rata allotment is clear. अभी pro rata forfeiture reissue हम बाद में अपनी वीडियोस में करेंगे, but the concept of pro rata allotment should become clear with this video. Thank you for watching this video. Stay connected and do subscribe my channel. Don't forget to comment and like the videos. Thank you.